Hi, this is Ruchika, and today in this video, I am going to explain a poem of class 11, that is childhood. See, childhood is a very important and beautiful part in every person's life. It is full of innocence and it is a time when you are a child. Now, the question comes into everyone's mind, what is like the time of child being a child? Time is like 3 to 11 years of age. Childhood stage is a stage of 3 to 11 years of age. Before that, it is infancy, which is neonate to up to 1 year age, and toddler 1 to 5 years. Toddler and childhood में 1 to 5 के अंदर जो है वो आपका फेज 3 to 11 वाला भी आता है. चाइल्डहुड में भी दो फेजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड और मिडल चाइल्डहुड. 3 to 8 years अर्ली एंड 9 to 11 मिडल. अब राइटर ऑफ दिस पोइम इज मार्कस नेटन, and he is a renowned Norwegian writer, poet, born on 1917 March in Oslo, Norway. He wrote famous and profound poems, and the most known work of his being is The Childhood. It was the poem written in his native language and later translated into English. So he wrote it at the age of 12, and yet it holds a sense of maturity, because एक छोटा बच्चा 12 साल का एक पोएम लिखता है, उसमें इतनी सेंस ऑफ मैच्योरिटी है. जब आप पोएम को सुनोगे आपको खुद समझ आएगा दैट उसने इतनी मैच्योर पोएम लिखी है जो एक छोटा बच्चा नहीं समझ सकता, नहीं फील कर सकता, एंड लॉन्गिंग दैट ऑल यंग एडल्ट्स कैन रिलेट टू. And now let us come to poem stanza 1. When did my childhood go? Was it the day when I ceased to be 11? Was it the time when I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that day? Ab he is asking in the stanza 1, he is asking himself a question. He is wondering about when he has lost his childhood. He is asking himself whether it was a day when he was no longer of 11 years, when his 11th ended and he jumped into 12 years. Was it that day? Or it was the day when he realized that hell and heaven, which he used to learn from other, does not exist in geography book. आपने सारा कुछ, जब वो 11 साल पूरा हो गया, शायद वो दिन था जब उसने अपना बचपन खो दिया, या वो दिन जिस दिन उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो लोग हमारे साथ बातें करते हैं बच्चों के साथ, हेल भी है, हेवन भी है, वो उसको ज्योग्राफी बुक जब उसने पकड़ी है और उसमें उसको दिखा ही नहीं है, तब उसको समझ आया शायद मैं अब मेरा बचपना ख़त्म हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेंजा सेकेंड. स्टेंजा सेकेंड में बोलता है अगेन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that adults were not all they seems to be? They talked of love, they preached of love, but they did not act so lovingly. Was that day? Here he is again asking himself the same question, that when did his childhood go? कब उसका बचपन चला गया? He feels when he started seeing the world with a new perception that adults are hypocrites. What they seems to be, they are not in reality like that. They talk of love all the time, but never behave so lovingly. दे आर डबल फेस. देखिए जो मैच्योर लोग होते हैं वो सोसाइटी कॉन्शियस होते हैं. दे आर डबल फेस. व्हाट दे पोज, दे आर नॉट इन रियलिटी लाइक दैट. सो व्हाट दे अपेयर टू बी, मे बी दे आर नॉट लाइक दैट. तो अब यहाँ पे वो कह रहा है शायद वो दिन तब था जब मुझे ये समझ आना शुरू हुआ कि वर्ल्ड जैसा दिखता है वैसा है नहीं. एक छोटे बच्चे के लिए सब ठीक है, लेकिन जब आप बड़े होते हैं आपको समझ आना शुरू होता है लोग चालाकियाँ कैसे करते हैं, लोग आपके साथ कैसे बिहेव करें. अडल्ट जो बोलते हैं वो सच में करते नहीं, जो प्यार प्यार की बातें करते हैं और वो उतना प्यार उनमें होता ही नहीं है. अब वो थर्ड स्टैंजा में अगेन यही क्वेश्चन दोबारा अपने आप को पूछ रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that day? No, he deliberates on the same question about when he lost his childhood. He's thinking of different possibilities कि ये हो सकता है, वो हो सकता है. Now he's wondering, maybe it was the day when his mind was his own, means when he was able to use his mind in his own way. He was able to give logics, he was able to give reasons, he was having a power of decision, or when he realized that he could produce his thoughts which were not bound now by anyone. Was it that day? अब वो कहता है कि जब मेरा अपने माइंड ने काम करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, लॉजिक देना, वो दिन था शायद जब मैंने अपना बचपन खोया. अब स्टेंजा 4 में वो क्या कहता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फैंट्स फेस. दैट्स ऑल आई नो. अब यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में ही इज कंक्लूडिंग दैट his childhood has gone to some forgotten place which will never come back.
कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ से वो रिट्रीव नहीं हो सकता. He cherished his childhood innocence which is vanished now. And if you want to see that, and it could be seen only in a baby's face. अगर आप उसको देखना चाहते हो एक छोटे बच्चे के फेस पे देख सकते हो. अगर हम बात करें, जो राइटर कह रहा है कि चाइल्डहुड स्टेज जो होती है सिंप्लिसिटी स्टेज होती है, येस अर्लियर इट वाज, बट नाउ अ डेज चिल्ड्रन आर डिप्लोमैट ऑल्सो. जो 3 से 11 साल के बच्चे तेज हो गए हैं. पहले के फेज में 3 से 11 साल का बच्चा जो है वो सिंप्लिसिटी इनोसेंस को दर्शाता था. अब मैंने यहाँ एक शॉर्ट समरी दी है इसकी कि ये पोइम जो है पूरी रिवॉल्व कर रही है एक ही क्वेश्चन पे. जो राइटर है, पोइट है, यहाँ एंग्विश नहीं बता रहा या दुख नहीं बता रहा या कुछ और चीज़ नहीं बता रहा. वो ये बताना चाहता है कि वो अपनी चाइल्डहुड को खोने की जो फीलिंग को है याद कर रहा है, और वो कब खोया उसको समझ ही नहीं आया. वो उस चीज़ के लिए बार बार अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है. शायद उसने तब खोया जब वो 11 पूरा हो गया साल का, 11th कंप्लीट हो गया, या फिर तब खोया जब उसको हेलन हेवन का पता चला कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ज्योग्राफी बुक में, तो वो है ही नहीं. या फिर जब उसको ये समझ आना शुरू हुआ कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, हिपोक्रेट्स हैं, एडल्ट्स प्यार की बात करते हैं बट प्यार उनके दिल दिमाग में कहीं नहीं होता. या फिर उसको तब समझ आया जब उसका माइंड अपने हिसाब से चलना शुरू हुआ, लोगों के वजह से, लोगों से डोमिनेट नहीं हुआ माइंड, अपने आइडियाज़ को उसने प्रोड्यूस करना शुरू किया. सो लास्ट में उसने कंक्लूड किया जहाँ खोया है वहाँ से आ नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हो एक बेबी के फेस पे देख सकते हो. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.